जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आप जी दी मेहर नाल किरपा नाल नवां साल सुख नाल चढ़िया, खुशियां नाल चढ़िया ते इसे तरह गुरु पाजी पूरा साल खुशियां नाल ते सुख शांति नाल बतीत होवे ते आप जी दी सारी संगत नूं भी सुख शांति नाल बतीत होवे ते आप जी उन्हां दी झोलियां 'ਚ खुशियां पाओ। और आंटी जी ਜਿਹੜੇ सत्संग शेयर ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏ, ਸਕੂਨ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु पा जी लख लख शुकराना तुहाडा। गुरु पा तुसी जिंदगी सवारी मेरी, जो मेरा ड्रीम सी तुसी मेरा ड्रीम पूरा किया। गुरु पा इंसान सच्ची पता नहीं परमात्मा ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਭ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਰਨ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ
ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਲੈਸਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਬਸ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਜੋਬਸ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਲੇਟ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਠਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਸਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे घर में नए साल से पहले ही बहुत ज़्यादा घर में लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में। तो मेरी जो सास है वो मेरे घर पे आई थी नए साल से पहले, और जब से उसी दिन से ही लगा लो, उसी रात से मेरे घर में लड़ाई हो रही है। मेरे को गुरु पा का मैसेज भी आया था कि वो औरत भी फिर से तेरे घर में आ रही है जो हमेशा तेरे घर में कुछ करके जाती है, ध्यान रखना। बस गुरु पा, आप ये मुझे मैसेज में पहले ही बता देते हो कि उसके वहाँ का कुछ खाना नहीं है। तो गुरु पा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक माँ बनकर वो अपने बच्चे के लिए लेके आती है, अपने बेटे के लिए लेके आती है, पोते के लिए लेके आती है। तो
गुरुपा मैं उस चीज़ को मना नहीं कर सकती। मैंने कई बार उस चीज़ के लिए मना भी किया है। मुझे पता है कि वो सिर्फ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो जाते हैं कहीं पर मेरी जेठानी के पीहर में जाते हैं, मतलब मेरी जेठानी है वो भी मेरी सास के साथ मिली हुई है और वो उसके साथ जाते हैं। तो फिर मैंने उनके उसके बाद भी मैंने कई बार उनको मना किया है कि मेरे घर में कुछ मत लेके आया करो जब तुम वहाँ जाते हो। पर सॉरी संगत जी, पर वो चीज़ के लिए कभी उस बात को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। और मेरे हस्बैंड है वो फिर एक एक हफ्ते तक 10 दिन तक ड्रिंक करते हैं कि तूने मेरी माँ की बेइज्जती कर दी, तू उनको गलत बोलती है, वो आते तो उनकी इज़्ज़त नहीं करती है। इज़्ज़त करना अलग बात होती है, जब मुझे पूरा डाउट होता है उनके ऊपर और सच में ही वो सारी चीज़ें होती हैं, मेरे हंसते खेलते घर को वो एकदम से आग लगा के चले जाते हैं। और इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन पहले वो आए थे। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन वो आए थे उस दिन के रात से लेके अब तक ना मेरे घर में इतनी लड़ाई है, इतनी लड़ाई मैं आपको बता नहीं सकती। कि आज तो बस मैं मतलब रोज़ मेरे अंकल जी मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। और आज तो मैं घर ही छोड़कर चली जाती। सुबह मैं अपने बच्चे को छोड़कर जा रही थी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, ना मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी। पर मैं अगर संगत जी कभी मैं चली गई घर से बाहर तो लड़की कोई बाहर जाती है सेफ तो नहीं होती ना। और मैं कभी मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि तू भाग जाए यहाँ से। अगर मैं वो यही चाहते हैं और संगत जी वो यही चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि उनको मैं और मेरा बच्चा दुश्मन लगता है। और उन्होंने बहुत कोशिश की थी, पहले भी मैं 3 महीने मम्मी के पास रह के आई थी। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मेरे अंकल जी को मुझसे मेरे अगेंस्ट और ज़्यादा कर दिया। वो मैं चली तो गई थी कि ये सुधर जाएंगे, इनको मेरी कमी महसूस होगी, पर अपनी पूरे घर की कहानी तो मैं आपको क्या बताऊं। बस गुरुजी की वजह से वो 3 महीने मेरे को गुरुजी से मैं जब भी जुड़ी थी 2023 में मुझे अक्टूबर में गुरुजी का स्वरूप मिला था। और उस वक्त मैं जानती नहीं थी, बस मेरी मासी ने मुझे दे दिया था। और गुरुजी का स्वरूप मुझे अक्टूबर में मिला था। मैं 1 हफ्ते के अंदर अपने घर आ गई थी, 1 हफ्ते में। आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे 3 महीने लग गए इस घर में घुसने में। कि वो मुझे जब भी कोशिश करती तो इतनी बड़ी लड़ाई बढ़ाती थी मेरी सास की, मैं आ ही नहीं पाती थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना उस दिन के लिए। पर गुरुपा मैं कब तक ये चीज़ होती रहेगी पापा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ उन लोगों से। कि मैं आप बोलते हो कि वो आ रहे हैं कुछ खिला दिए, तेरे बच्चों को खिला दिया। वो हमेशा आप कहते हो वाइट चीज़ लेके आएगी, वो हमेशा वाइट चीज़ लेके आते हैं। कभी मक्खन ले आते हैं, कभी रसगुल्ले ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। तो मैं कैसे रोकूं गुरुजी। जब जब मैंने रोका है तो तब तब मेरे घर में और भयानक कलेश हुआ है कि फिर उसी दिन से लड़ाई शुरू हो जाती है अगर मैं रोक दूँ तो। और रोकने के बाद भी वो मानते कहाँ हैं, फिर भी वो खा लेते हैं। और इधर से मैं बोल भी देती हूँ, उधर से वो खिला भी देती हैं। और फिर उसके बाद लड़ाई हो जाती है। गुरुजी मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती पापा, आप मुझे बार बार रोज़ बोल रहे हो कि शुक्राना कर मैं सब ठीक कर दूँगा, शुक्राना कर मैं सब ठीक कर दूँगा। और गुरुपा मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, पर मैं थक गई हूँ इस चीज़ से, इन लड़ाइयों से। मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उस पर क्या असर पड़ता है। वो हम मतलब ऐसे मुझे मारते हैं, पकड़ के मेरे बाल पकड़ के मारते हैं, कभी मुझे नीचे गिर के मारते हैं। मेरा बच्चा देखता है उनको क्या असर पड़ता है। और वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब मैं उसको तब टाइम दूँ जब मेरे घर में शांति हो। ना मैं उसको टाइम दे पाती हूँ, ना मैं किसी चीज़ का टाइम दे पाती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे का पूरा भविष्य आपके हाथ में है। वो मेरे बच्चे बेबी कराते हैं, मेरे बच्चे के कपड़े गायब हो जाते हैं, मुझे मिलते नहीं है। मैं किससे लड़ाई करूँ, मैं पूछूँ तो फिर घर में बहुत भयानक लड़ाई हो जाती है। गुरुजी आप जानते हो, आप तो घर में ही रहते हो ना मेरे पापा। आपका स्वरूप मेरे घर में लगा हुआ है, कौन किस नीयत से आ रहा है, कौन किस नीयत से जा रहा है, आप सब जानते हो। तो पापा प्लीज़ मेरे बच्चे पे भी कोई कष्ट है तो उसे हटा दो मेरे पापा। मेरे अंकल जी पे भी कोई कष्ट है, हटा दो मेरे पापा। मेरे घर में सुख शांति ला दो मेरे गुरुजी। और मेरे जो सास हैं, जब भी मेरा बेटा स्कूल जाता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि रेगुलर जा रहा है, रेगुलर जा रहा है। हमेशा ही क्या होता है कि ये 4-5 दिन जाता है फिर बीमार हो जाता है। इसकी 4-4 दिन 5-5 दिन की छुट्टियाँ हो जाती है, कभी कभी हफ्ते की हो जाती है। तो जब भी रेगुलर जाना शुरू करता है तो हमेशा बोलते हैं ये स्कूल जा रहा है, तो ऐसे बोलते हैं। तो अगर ये ABCD भी सुना देता है, कुछ सुना देता है, तो अपना फेस मतलब ऐसा कर लेते हैं कि कितना गुस्सा आ रहा है उनको। कि वो ना ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे ना, और मेरे बड़े बेटे के बच्चे ही पढ़े लिखे हैं, पोता जो पोती है उनकी।
तो मैंने उनकी आंखों में नफ़रत देखी है अपने बच्चे के लिए। मैंने कभी कई बार उनको देखा है कि ये उसको पीट रहे होते हैं और मैं अचानक से आ जाती तो उसको एकदम से गाल चूमने लग जाएंगे। मैंने कई बार नोट देखा है, पर मैं उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती जो मैं अपने अंकल जी को दिखा सकूँ। अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी, शिकायत करूँगी, तो मैं वो भी नहीं कर सकती। मेरे पापा, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर से इतनी बड़ी मुसीबत को हटाओ। गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो भाग कर स्कूल जाता था, अब कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं उसको मार पीट के भी भेज जाऊँ तो 3 साल का बच्चा है, बताओ वहाँ जाके भी तो रोएगा ना, मैडम भी इसको मारेगी, इधर से मैं भी मारूँगी इसे, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ज़्यादा माइंड से। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी की, उसको ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, वो बुरी चीज़ हटाओ मेरे बच्चे पे से। प्लीज़ मेरे गुरुजी, प्लीज़ मेरे गुरुपा। मैं सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सब ठीक कर देना आप पापा, सब ठीक कर देना और मुझे बड़े मंदिर बुला देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना कि उन्होंने अपने चरणों में लिया। रोज गलतियां करते हैं फिर भी हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं ना, और ये अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस हर टाइम अपना शुक्राना करवाते रहना गुरु जी। हम आपका शुक्राना करते करते ना थके कभी भी, और बस सिर्फ मुंह से शुक्राना ही निकले और कुछ नहीं। शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि जो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा होता है गुरु जी, वही हमें देते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि 2025 शुरू होते होते को बहुत घुमाना है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है। इस साल बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की। स्टार्टिंग में ही गुरु जी ने 1 तारीख से पहले गुरु जी के साथ सेलिब्रेशन किया, न्यू ईयर गुरु जी के साथ सेलिब्रेशन किया। शुक्राना गुरु जी, अपने साथ करवाया, आपने इस लायक समझा कि हम आपके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सके। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और फिर उसके बाद 1 तारीख को गुरु जी ने ही घुमाना शुरू कर दिया, और 4 दिन हो गए गुरु जी खूब घुमा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर सॉरी गुरु जी इस बात के लिए, फिर भी शुक्राना मैं आपको रोज नहीं कर पाई। सॉरी गुरु जी, मन में तो करती रही पर आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी, कभी अपने चरणों से दूर मत करना। शुक्राना गुरु जी, कहते शुक्राना कर, शुक्राना अपने साथ, अपने हर एक मेंबर के लिए शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी के लिए शुक्राना गुरु जी, बेटी की तरफ से शुक्राना, आपके बेटे की तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने ही घर संभाल रखा है। छोटे बेटे के लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपकी इस बेटी के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने इस घर को संभाल रखा है और आपने ही संभालना है, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरु जी। मैं आपके बिना जीरो से भी जीरो हूँ गुरु जी। कभी अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों में लगाए रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।